Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. For today's episode, we will be having a top order batsman and a wicket keeper. None other than Mr. Naman Ojha. He hails from Madhya Pradesh itself. Talking about him, he is an international cricketer and has played a number of matches and has represented many teams. Now let me add him and let's have a chat with him. Hello. 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 Hello guys. Hi, How are how you? are you? I'm very good. How are you? I'm fine. Thank you so much for joining me. Thanks for having me. So, just to start off, what made you enter the cricket field? I love cricket from my childhood only. When I was 3 or 4 year old, I was in Devas and at my Nani's place, and opposite to that there is a ground. So I usually what I do is when we sleep on the roof actually because of very temperature. Terrace. We sleep on terrace because of temperature, and at that time we don't have AC at our Nani's place. So we sleep at terrace, and in front of that we have a ground where 6 o'clock their practice starts. Okay. So when I get up at 5:30, I thought what these guys are doing, and then I started loving with this game, and I started going there. Then I went to Ratlam at my dadi's place, and then I started playing, and then I came to Indore to CCI, and then again, yeah. Then it happens. And it continued like that. So, who has been your cricket coach सबसे starting से? Who has inspired you in cricket हमेशा? I start watching. When I grew up, I started watching Sachin Tendulkar, Brian Lara, and so from there I get inspiration to become a player like Sachin and Brian Lara. Wow. But your cricket coach, as in जब आप खेलते थे पहले initially और आपने किसी को देखा हो यार मुझे इनसे कोचिंग जरूर लेना है, कोई ऐसा रहा है? हाँ, ऐसा रहता है ना। मैं जब जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मतलब जो एमपी के स्टार्स हैं, नरेंद्र हिरवानी और अमय खुरासिया, तो मैं सोचता था इनके साथ मुझे खेलना है। देन व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग रणजी, आई थॉट ऑफ ऑल बिग प्लेयर्स लाइक जो भी उस टाइम इंडिया के लिए खेल रहे थे, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, और इन लोगों के साथ मुझे खेलना है और इनसे कुछ सीखना है। देन मैं राजस्थान रॉयल्स में चला गया फर्स्ट टाइम, तो मैं अंडर शेन वॉन, ग्रैम स्मिथ के साथ में मैं खेला। तो मैं उन लोगों के साथ खेला तो मैं उन लोगों के साथ खेला तो मुझे लगा कि उनसे मुझे इंस्पायर होना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए मुझे। तो मैं फिर उनके साथ में सीखता चला गया, और आज भी मैं कहीं कहीं पे खेलता करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो उससे हाउ कैन आई टेक इट। You find inspiration everywhere. Yeah, I try to find inspiration, and I think that's good enough actually to to inspire from anyone who can inspire you, or who can give you something. जी बिल्कुल। अच्छा, जो पहला मैच आपने ऑफिशियली खेला था उसका कोई एनेक्डोट आपको याद हो कि यार जो मैंने पहला मैच खेला था उसको मैं ऐसे खेलता तो बेटर होता? ऑब्वियसली ऐसी कोई चीजें तो रही ही होगी, तो कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सके? हाँ, मैं when I started playing बिल्कुल at my early days, when I start playing for MP senior team, तो मुझे लगता था कि जो गलतियां मैंने करी है वो मैं अगर आज होता, अगर उस जगह पे होता तो मैं रिपीट नहीं करता। आज मैं जो यंगस्टर्स को देखता हूँ लाइक पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, और भी जो स्टार्स जो अंडर 19 से आ रहे हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, those guys who have played for World Cup under 19, and they're coming and they are doing very good at IPL level or at domestic cricket. So I learned from them that they are not doing any mistakes of getting out in their 60s and 70s, and they score a big 100, which I lacked in my early days.
So I thought that मेरे को ये चीज improve करता उस time, तो I could have been a better player than which what I am today. But you are perfect, I feel. हाँ मतलब ऐसा नहीं है, यू हैव मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा अपने में फ्लॉज रहते हैं जो अपन हाउ हाउ वी कैन रेक्टिफाई दैट, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो मुझे भी यही लगता है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव. That's nice. अच्छा, are you superstitious about something like खेलने के पहले बैट को कहीं मतलब कुछ भी ऐसे जो खेलने के पहले सुपरस्टिशंस होते हैं लोगों के साथ में, उसमें हाँ. कुछ है आपके साथ में? पहले था, जब मैं स्टार्ट किया था तो काफी सारे वो थे सुपरस्टिशियस कि ये नया जैसे? या ये, जैसे कि मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ एक चीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरा स्वेट बैंड या मेरे सॉक्स या कुछ ना कुछ नई चीज होना चाहिए, या अगर जिस टी शर्ट से मेरा बैटिंग में रन हुआ है तो वही वाला टी शर्ट वापस फोर्थ डे, या वही वाला टी शर्ट मैच जो एक क्रूशियल मैच के टाइम वही वाला कपड़ा होना चाहिए धुला हुआ, तो अच्छा रहता था. लेकिन फिर एज आई ग्रो ओल्डर मैंने वो सब चीज़ें हटा दी, क्योंकि वो सब चीज़ें हमेशा पॉसिबल नहीं है होना, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो, यू ट्रैवल टू द वर्ल्ड, और ऐसा होता है कि बहुत सारी आपके सामान का भी आप कहीं ना कहीं छूट जाता है, आप भूल जाते हो सामान. तो वो देखते हुए मैंने वो सारे सुपरस्टिशन जो भी थे मेरे वो सब हटा दिए. सिर्फ बेसिक जो रूटीन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो अब क्या रूटीन है आपका? यही रूटीन है कि मॉर्निंग में उठ के अच्छा ट्रेनिंग करना है, अच्छा प्रैक्टिस करना है, अपने आप को तैयार रखना है कि कोई सा भी मैच हो, आप उसके लिए आपकी बॉडी फिट रहना चाहिए, आप अच्छा प्रॉपर टच में होना चाहिए, प्रैक्टिस वगैरह प्रॉपर तरीके से होती रहना चाहिए, बॉडी फिट रहना चाहिए. तो ये सारी चीजें अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आएगा, फोकस रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे. लेकिन रोज ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है. Having such cute kids तो डिफिकल्ट हो ही जाता होगा. हाँ थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, क्योंकि थोड़ा मिसमैच चलता रहता है थोड़ा कभी कभी, पर उसी के That is life. ऊपर नीचे होता है और आपको उसी के साथ कोप अप करना रहता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बट यू नो, बीइंग अ क्रिकेटर एंड इस लेवल के क्रिकेटर नीड्स ट्रिमेंडस हार्ड वर्क. सो आप कितने आवर्स डेडिकेट करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए? मैं कोशिश करता हूँ अपना मॉर्निंग का जो मेरा फर्स्ट हाफ रहता है वो मेरा उसी को डेडिकेटेड रहता है. ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कुछ भी एक चीज करता हूँ मैं. आजकल ट्रेनिंग करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, दोनों में से एक चीज. आज मैंने प्रैक्टिस किया था, आई बैटेड फॉर अराउंड 1.5 आवर्स, और कल मैंने ट्रेनिंग किया था, कल आई गॉन फॉर रनिंग. उसके पहले मैंने बैटिंग किया था, उसके पहले मैंने अगेन ट्रेनिंग किया था. तो इस तरीके से मैं प्लान करता रहता हूँ अपना डेली का, रोज का कुछ ना कुछ मेरा प्लान रहे कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपना बिल्टअप करता रहूँ. बिल्टअप. टॉकिंग अबाउट योर गेम प्ले, मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कोई बॉलर्स है जिनसे यू फेल्ट अनकंफर्टेबल विद कि यार अब ये बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ रहता था मेरे को. पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टेड की तो मैं आरपी सिंह जब बॉल डालते थे तो मैं आरपी सिंह को आउट होता था काफी उनकी इनकमिंग बॉल पे या जो भी रहता था. फिर मैं थोड़ा आगे गया तो कोई ना कोई एक बॉलर कभी कभी रहता है वो आपको बार बार आउट कर देता है, तो वो आपके दिमाग में प्ले करता है. तो वो प्ले करता है वो ऐसा, और वो करता है और आपको निकलना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते हो. आप इफ यू आर अगर आप फोकस्ड हो तो आप उस चीज से निकल भी जाते हो. अच्छा, what is the driving force for you to be in the front line हमेशा? फ्रंट लाइन यही होना है, मैच विनर होना है, मैच जिताना है आपको. यही मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बैटिंग करूँ तो मैच जिताऊं, या मैं कीपिंग करूँ तो मैं कीपिंग से मैच जिताऊं, ब्रिलियंट कैचेस पकड़ूं, टीम को जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई थिंक आप वो अगर आप 100% रह के कंट्रीब्यूट करते हो अगर आप कोई भी चीज़, तो वो डेफिनेटली वो फॉल होती है आपकी प्लेस पे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, फिटनेस हमेशा ही हर एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट होती है. कहते भी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो व्हाट इज योर फिटनेस रूटीन? व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ फिट? रनिंग. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रनिंग. रनिंग अच्छा. के बाद थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए, जिमिंग थोड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी स्ट्रांग रहे. और उसके साथ में अपर बॉडी, लोअर बॉडी आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो कि हाउ यू आर फीलिंग, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो.
और आई थिंक मेरे हिसाब से रनिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर फिटनेस। रनिंग सबसे अच्छी चीज है ऑन द तो आप ग्राउंड। कितना रनिंग करते हैं इन अ डे, या जब भी करते डेली हैं? मतलब कोशिश करता हूँ कि एक वीक में 2 बार 20 मिनट्स तो रनिंग रहे ही रहे, मतलब 20 मिनट्स ओके। कंटिन्यू। और थोड़ा स्प्रिंट स्ट्राइड उसके बाद में, स्प्रिंट स्ट्राइड्स वगैरह रहे, वो भी 15 20 25 मिनट का रहे। तो आपका जब हार्ट अच्छा काम करेगा, अच्छे हार्ट रेट पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपका फिटनेस इंप्रूव होगा। अच्छा, इफ नॉट अ क्रिकेटर, आप क्या बनना चाहते थे? अगर क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या बनते? ये सोचा ही नहीं मैंने कभी भी, क्रिकेटर नहीं बनता मैं बचपन तो वो जो से बच्चों को स्कूल से होता है कि मुझे बड़े होके क्रिकेटर बनना है, लड़कों को हमेशा होता है, वैसा ही था आपके साथ भी? हाँ वैसे ही था, क्रिकेटर ही बनना है, उस हिसाब से ही मैं फोकस था। और मैं रतलाम से मेरे पेरेंट्स रतलाम रहते हैं, पर मैं वहां से इंदौर आया था खेलने के लिए जब मैं 14 साल का था, 13 साल का था। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे मतलब ब्रेक करना है। बट कभी कुछ और सेकंड थॉट नहीं आया? क्योंकि आप कभी भी किसी भी फील्ड में रहते, देर आर फेलियर्स, देर आर सेटबैक्स, सो एवर थॉट कि यार अब ये नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो अब मैं कुछ और ट्राई करता हूँ? नेवर? मैं ये नहीं सोचता था, मैं ये सोचता था कि यार ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं सोचता था कि क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं ये सोचता था। मैं ये नहीं सोचता था कि अगर ये नहीं हो पाया तो अब मैं दूसरा क्या करूंगा। मैं ये सोचता था कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा, क्योंकि बाकी तो कुछ मेरे को आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पर मैं ऐसा सोचता था कि परफॉर्मेंस तो करना ही है, अपने को परफॉर्मेंस करना ही है, टीम को जिताना ही है, अपने को अपना परफॉर्मेंस तो करना ही है। दैट्स इट, ये मैं सोचता था। अच्छा, ड्यू टू कोरोना वायरस, COVID-19, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द गेम प्ले। हाँ काफी चेंजेस आए ही है। तो हाँ, पर्सनली आपको कौन से चेंजेस अच्छे लगते हैं और कौन से अच्छे नहीं लग रहे हैं? लेकिन कुछ चेंजेस तो ये आ गए कि अब हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखते हैं जिम के अंदर, खास ख्याल रखते हैं। मैट्स की जो एक्सरसाइज मैट्स होती थी, फोम रोलर होते थे और वो बैंड्स वगैरह होते थे, तो आजकल वो पर्सनलाइज कर दिया है कि पर्सनलाइज होना चाहिए वो सारी चीजें। तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग भी खेलते तो पसीने का है, कोई एथलीट पसीने में हो रहा है वो भी उसी से करता था हम। तो उससे आई थिंक दूसरे कुछ भी आपको होने के चांसेस, कुछ भी दो छोटा मोटा जो भी इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस आपको रहते थे और होता भी था। लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी आ गई है कि वो अच्छा हो गया है कि दूसरा कि बॉल के ऊपर वो सलाइवा लगा के भारी करते थे, तो वो भी बंद कर दिया आजकल, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया है वो भी अभी फिलहाल। तो ये सारी 2-3 चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर वो 15 दिन का क्वारंटाइन करते हैं और ट्रेनिंग वो करना है, तो काफी सारे तामझाम बढ़ भी गए हैं मतलब कोविड के कारण। और वो जरूरी भी है क्योंकि एक ऐसी बीमारी आई है जिससे सबको लड़ना है। तो उसके लिए एक डिफरेंट, पर अगर जिसको खेलना है तो वो ये करना पड़ेगा। फॉलो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जिसको भी ये खेलने का मन है आगे, तो उसको ये सारे तामझाम, जो क्वारंटाइन है 15 दिन का, फिर टीम के साथ रहना है, बबल में रहना है, यार अपना जो एक बबल बनाया है बोर्ड ने और आगे भी टीमें बनाएंगी कि किसी को आसपास बाहर वाले को नहीं मिलना है और रूम में रहना है, और बहुत सारे जो आगे है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है एक तरीके से, क्योंकि पहले कैसा था कि इट आप इज। बोर हो रहे हो या आपका परफॉर्मेंस कम हुआ या नहीं भी हो पाया तो आप बाहर निकल गए थोड़ा, कि आप अपना माइंड को फ्रेश करने, अब आपको रूम में ही रहना है, बाहर नहीं जा सकते हो। तो पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, वो अपने सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इफ मैजिकली वन डे आप अपने वापस से यंग डेज में जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने गेम प्ले में क्या चेंज करना चाहेंगे? बट आई एम स्टिल यंग, मतलब एज इन व्हेन यू स्टार्टेड, ऑब्वियसली यू आर स्टिल यंग, बट व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इन क्रिकेट। अर्ली क्रिकेट में मैं यही बस जो भी मैं जो अपनी इनिंग्स जो मेरी 60 70 80 की जो बैटिंग में थी वो कन्वर्ट करना चाहूंगा वापस उसको 100 में, बिग 100 में। क्योंकि काश ऐसा हो पाए। क्योंकि मेरे 90s भी बहुत सारे, आई थिंक 10-12 बार मैं 90s पे आउट हुआ हूँ, तो वो भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा 100 में तो काफी डिफरेंस हो जाएगा। तो वो फीलिंग कैसी रहती है, आप अगर वर्ड्स में से एक्सप्रेस कर सके, जब 90 रीच हो जाता है बट 100 नहीं हो पाता रीच, वो कैसी फीलिंग रहती है? ऐसी रहती हो कि आप मुंह हिलाते रहो और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है। स्टार्टिंग के करियर में तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन
एज यू ग्रो अप, आप मिडिल एज में आ जाते हो, तब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार 100 बनाता तो अच्छा रहता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, और वो काफी सारी चीजें सीजन के लिए बहुत अच्छा, आप एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है, एक अच्छा, तो आप वहां से बहुत लंबा जा सकते हो मतलब। तो ये दो दो बिल्कुल। चीजें जो मैंने मिस करी अपने स्टार्टिंग के करियर में, जो मैं अब अगर वापस जाता हूँ तो मैं वो मिस नहीं करना चाहूंगा। Acha, each and every cricketer has a history of playing gully cricket and even you have one, जैसा आपने यस, हमको बताया। यस। ठीक है, सबकी स्टार्ट वहीं से होती है। तो हाँ, आप अपने गली क्रिकेट के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सके? हाँ, मैं और मेरा भाई खेलते थे हम दोनों। हम लोग जब रतलाम में थे और मैं ग्राउंड नहीं जाता था, तो हम लोग नीचे हमारा चैनल का शटर बना के और हम लोग क्रिकेट खेलते थे प्लास्टिक के बॉल से, और उसमें जो हमारी मेन रोड चलती थी उस टाइम, न्यू रोड की, उसके उस तरफ मारते थे तो चौका, या ऊपर से मारा तो छक्का, और वो सब हम लोग, तो बड़ा मजा आता था वो भी खेलने में। मेरा छोटा भाई था अनन्य, उसके साथ हम मैं खेलता था, और एक दो जने और थे, वो हम 3-4 का टीम रख के और फिर खेलते थे, तो बड़ा मजा आता था। तो क्या क्या जुगाड़ उस टाइम पे आप लोग यूज करते थे? हम लोग जुगाड़ इन द सेंस, वहां पे हम लोग जैसे खेलते थे तो वो स्ट्रेट पिच था और वहां पे एक दीवार थी, तो हमारे हमको स्टंप बनाने का नहीं था, तो हम लोग स्टंप के लिए चैनल को खींच देते थे, चैनल का वो रहते नट बोल्ट, वहां चैनल इतना रहेगा तो ये स्टंप हो गया। फिर उसके बाद में बाकी बैट बॉल तो रहता ही था, फिर पत्थर रखते थे सामने वाले स्टंप के लिए कि वहां पत्थर हो गया, और बस इतना ही था जुगाड़ तो, आई थिंक। जुगाड़ ज्यादा नहीं, मतलब ये अभी तक इतना याद है। काफी पुरानी बात होगी। हाँ, अच्छा, हैव यू एवर फेस्ड स्लेजिंग? हाँ, मैंने किया है फेस स्लेजिंग स्टार्टिंग ऑफ माय हाउ डू करियर। यू मैनेज इट? कुछ ज्यादा जवाब मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो, थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो जाता है। अगर आप रिएक्ट करोगे उस चीज को, तो रिएक्ट अगर आप करोगे तो वो वापस उनको बहाना मिल गया वापस जवाब देने का। आप जवाब मत दो 2-4 बार 6 बार, तो इससे बंद हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, रन्स बनाओगे तो फिर एवरीथिंग विल कम अंडर कंट्रोल। Do it in your work. हाँ, फोकस ऑन योर वर्क। Acha, what is your future plan? What are your dreams which you want to achieve in cricket? बस यही है कि अब यहाँ से कि जब भी मैं जिस भी टीम के लिए मैं खेलूं या जहाँ पे भी मैं खेलूं, वहां पे अच्छा रन्स बना के उसको फिनिश करूं, मतलब कि अच्छे बड़े 100 बना के या रणजी जिता के या कोई ट्रॉफी जिता के उनको फिनिश करूं, यही मेरा एक गोल है। बट एक कुछ बड़ा सा, ये तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, बट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म थिंग, कुछ बड़ा सा ड्रीम जो आप चाहते हैं कि यार ये तो मुझे करना ही है लाइफ में? लाइफ में यही है कि अब आगे क्या खेलूंगा या आगे कुछ और भी करूंगा, अगर कुछ भी कोई भी काम करूं तो उसको टॉप पे करूं, मतलब कि हाँ, मतलब उसको टॉप पे लेके जाऊं, या कुछ भी बिजनेस करूं तो उसको भी टॉप पे लेके जाऊं। मतलब बिजनेस का भी कुछ एट द बैक ऑफ योर माइंड है? बिजनेस करेंगे, अब क्रिकेट के बाद क्या करेंगे, क्रिकेट के बाद एवरीथिंग आई हैव टू डू। घर पे तो रह नहीं सकते, तो कुछ जो भी करेंगे उसको एक अच्छे नई हाइट पे लेके जाएंगे, जो भी करेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन दिस गेम और क्रिकेट में, कुछ एक चीज आपको मौका मिले कि आप एक रूल बना सकते हैं टू चेंज दिस, व्हाट विल यू मेक अ रूल? अगर एक चीज चेंज करना हो, कहाँ पे? गेम में, क्रिकेट में। आई थिंक अभी तो काफी अच्छा चल रहा है, मतलब T20 लीग्स आ गई हैं, मतलब आई थिंक लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें आ गई, तो प्लेयर्स को काफी फायदा है। आई थिंक बस ये अभी, इसके अलावा तो कुछ भी मेरे को दिखता नहीं है कि ज्यादा कुछ चेंज करना चाहिए क्रिकेट को। इट्स परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, बस ये है कि 4 डे क्रिकेट जो होता है, टेस्ट मैचेस जो होता है, उसमें उसके अंदर भी जो फाइनेंसेस हैं वो भी डोमेस्टिक में इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो IPL खेल रहा है वो ज्यादा पैसा कमाए या जो फर्स्ट क्लास खेल रहा है वो कम पैसा कमाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेहनत बहुत है। टेस्ट क्रिकेट में मेहनत बहुत है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन आपको धूप में खड़ा होना पड़ता है,
तो यही है कि वो भी अगर प्लेयर खेले तो उसको भी आई थिंक उसको भी उतना ही पैसा मिले जो एक आईपीएल प्लेयर को मिलता है। ऐसा नहीं होना जी। चाहिए कि आईपीएल मात्र 3 घंटे का गेम है। हालांकि वो खेलने के लिए भी आपको काफी टैलेंटेड होना पड़ता है कि जो बॉलों को आपको ग्राउंड के बाहर मारना है, वो स्पेस पे मारना है, तो वो भी एक टैलेंट ही है एक तरीके से। या वो आपको सिचुएशन में चोर बॉलिंग करके और आपको रन नहीं देना है, जो कि राशिद खान करते हैं या जो दूसरे बॉलर्स करते हैं, नवदीप सैनी करते हैं कि जो 4 ओवर में 24 रन ही देते हैं, तो जसप्रीत बुमराह करते हैं और ये जो करते हैं हम्म। I think बहुत कमांडेबल है। और उनको वो डिजर्व, मतलब वो जितने भी जो भी खेल रहे हैं आईपीएल, जितने भी प्लेयर्स, वो सब डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिजर्व, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो 4 डे क्रिकेट जो खेलते हैं हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, और उनको भी अच्छा मैच फीस रहे, उनको भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहे, जिससे कि कोई ये ना सोचे, किसी के मन में ये भावना आए कि यार हमें तो व्हाइट बॉल से क्रिकेट खेलना है, उसी में पैसा है। क्योंकि आप कोई सा भी स्लो खेलो आप या फास्ट खेलो, आपको अच्छा खेलना जरूरी है, परफॉर्म करना जरूरी है किसी भी टीम के लिए। तो उसमें आप कोई सा भी फॉर्मेट खेलो, 1 डे खेलो, T20 खेलो या फिर 4 डे खेलो, आपका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सबके आसपास ही रहना चाहिए। तो आसपास उससे ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो होना उससे चाहिए क्या होगा कि जो मतलब। प्लेयर्स के अंदर जो थोड़ा इन्फिनिटी आता है कि हम आईपीएल नहीं खेल पाए या हम आईपीएल प्लेयर नहीं है, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऐसा है या वैसा है, तो वो चीज़ें उनके मन में नहीं आएगी और वो भी एक अच्छी तरीके से अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तो आई थिंक आप देखो केएल राहुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मजा आता है उनको देखने में। और अभी आप देखो संजू सैमसन बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको देखने में मजा आता है। जोस बटलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक बटलर एक विकेट कीपर बैट्समैन ऐसे हैं जिनको मजा आता है देखने में, मैच विनर है। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक में भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं अभी, और वो डोमेस्टिक भी खेलते हैं। संजू को ले लो या किसी भी प्लेयर को ले लो, तो अच्छा खेलते हैं, मजा आता है देखने में उनको। नाइस। न शुभमन गिल है, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं। पृथ्वी शॉ को देखने में बहुत मजा आता है। पृथ्वी शॉ इज मतलब सुपर टैलेंट, अनबिलीवेबल है मतलब वो। अच्छा, जब भी आप टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो आप कोई सा अगर मैच देख रहे हैं तो whom do you wait for कि यार इसकी बॉलिंग है, इसकी बैटिंग आएगी तो मजा आ जाएगा गेम में? हाँ, जैसे उस दिन मैं मुंबई इंडियंस का मैच देख रहा था, तो कायरन पोलार्ड, मैंने कहा वो आएंगे तो एक गेम बन जाएगा। हमारे सब लोग दोस्त बोले अभी हार गई मुंबई, मैंने कहा अभी पोलार्ड है तो वो कर सकता है। और मैच टाई हुआ और वो सुपर ओवर में गया। तो जैसे कायरन पोलार्ड हैं और जोस बटलर हैं, संजू सैमसन हैं और क्रिस गेल हैं, तो ये सारे बैट्समैनों को देखने में मजा आता है। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखने में मजा आता है, राशिद बहुत। खान की बॉलिंग देखने में मजा आता है, और पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखने में मजा आता है। ऐसे हैं प्लेयर्स जिनका मजा आता है देखने में। अच्छा, अभी जब आप घर पे हैं और आईपीएल मैच चल रहा है, तो आपका क्या रूटीन रहता है जब मैच शुरू होने वाला रहता है? मैच शुरू होने वाला होता है तो हमारे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो पेपा पिग देखते हैं। तो 8:30 बजे तक तो वही चलता है, उसके बाद ही मेरे को रिमोट मिलता है। तो उसके बाद में मैं अपना मैच देख पाता हूँ। 9 या सेकंड इनिंग देखता हूँ जब वो सोने चले जाते हैं तब भी। बच्चों के लिए सैक्रिफाइस। नहीं, सेक्रीफाइस नहीं, वो सेक्रीफाइस मैं कितना मैच देखूंगा अभी सवेरे से लेके, वो बच्चे बोर हो जाते हैं फिर वो देखते देखते, उनको वो नहीं बिल्कुल। पसंद है और ठीक है वो बट दे आर चलता वेरी क्यूट सीरियसली। अच्छा, दोनों की अगर बात करें तो क्या आप ये चीज चाहते हैं कि वो दोनों आगे जाके क्रिकेट में जाए? है। अभी फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ये सब उनके हाथ में है, उनको जो भी करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो खेलना होगा तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, और नहीं खेलना होगा तो मैं खिला नहीं पाऊंगा। वो बिल्कुल। खेलना पड़ता है। बट डू यू सी एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्रिकेट दोनों का? देखते हैं, मेरे को, मैं घर में ड्रिलिंग वगैरह करता हूँ बैट पकड़ के, तो वो लोग भी करते हैं, थोड़ा कॉपी करने की कोशिश। अच्छा, हाउ डू यू मैनेज टाइम बिटवीन योर फैमिली एंड क्रिकेट?
बस आप मॉर्निंग में जो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ रहता है वो क्रिकेट को रहता है, फिर सेकंड हाफ में मैं आता हूँ, नहाता हूँ वगैरह हूँ, जो भी अपने काम वगैरह होते हैं वो करके फिर इवनिंग टाइम में फैमिली के साथ रहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा, एवर ट्राइड योर हैंड्स ऑन बॉलिंग? तो आपको दोनों में क्या पसंद है, फास्ट बॉलर या स्पिनर, आपको क्या पसंद है? आई थिंक फास्ट बॉलिंग ठीक लगता है मेरे को, बॉल थोड़ा स्पिन वगैरह होता है तो मजा आता है। एनी स्टेडियम जो आपको लगता है कि ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है, आप यहाँ पे एकदम अच्छे से खेल पाएंगे, कोई सा स्टेडियम ऐसा जो आपके दिल के करीब है? हैदराबाद वाला क्या राजीव गांधी मेमोरीज है इंटरनेशनल वहाँ? स्टेडियम। मेमोरीज है, मैंने वहाँ पे अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और मैच विनिंग इनिंग खेली है, और सनराइजर्स को मैं खेला और वहाँ पे हम लोग 2016 में चैंपियन हुए, हालांकि हुए बैंगलोर में थे, लेकिन हमारे होम गेम, हमारा होम था वो 4-5 साल, मेरा 4 साल तक होम था वो, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, मतलब हाँ मजा आया। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड खेले जल्दी से। ओके। बुक्स और मूवीज? मूवीज। एनिमल्स और पीपल? एनिमल्स। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। केक्स और कुकीज? केक्स। ब्लैक और व्हाइट? वाइट। टी और कॉफी? टी। टीवी शोज और वेब सीरीज? टीवी शोज। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। कॉलिंग और मैसेजिंग? कॉलिंग। टेक्स्ट और वॉइस नोट्स? टेक्स्ट। पिज्जा और पास्ता? पिज्जा। टॉम एंड जेरी और पेपा पिग? पेपा। मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर? मूवीज एट होम। वॉफल्स और पैनकेक्स? पैनकेक्स। Craziest fan moment you've ever had? I think one girl came at my place and she wanted to marry me after I got married. Yeah. अच्छा, आइसक्रीम और बर्फ गोला? Ice cream. समर विंटर रेनी? Rainy. नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? Mm, dinner North Indian, breakfast South Indian. वाओ। हॉलीवुड और बॉलीवुड? Bollywood. एन ऐप यू कांट लिव विदाउट? Insta. अथर्व और आन्या? Both. आईपीएल, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, इंटरनेशनल? At this point of time, IPL. इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, गली क्रिकेट? International. प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग मूवी? Playing cricket. घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का खाना. विकेट कीपिंग और बैटिंग? Batting. एमएस धोनी और एडम गिल क्रिस्ट? MS Dhoni. What message would you like to give to upcoming generation and the youth who are watching you right now? One message I wanted to give my to youth, that those who want to play cricket, please focus on on 4-day cricket, 3-day cricket. Don't run after money. Money will definitely come if you play good in 4-day cricket. If you score big runs, you will come under the eyes of selectors, everyone, and then you can, from there you can play to T20. But if you only focus on T20, you can't play 4-day or any form of cricket. So better focus on 4-day cricket.
मतलब पूरा अच्छा सा आपने बता दिया कि क्या करना चाहिए लोगों को आगे. Yes. अच्छा, which team are you supporting अभी IPL में? Uh, as of now, matlab, I'm not. I'm just watching good cricket actually. Means those like today. Today, two teams are playing. I have no clue about it. Yeah, so I'll support in like if Sunrisers and KKR is playing, I'll support Sunrisers because I played for Sunrisers. Then if Absolutely. Mumbai दिल के and करीब the है other तो. team is playing, I support Mumbai. Yeah, so it's depending on which team I played for, and so last night I supported Rajasthan also that because Shane Warne is there, he was watching there, so and he was my first captain in the IPL, and he supported me in 2009-10 in South Africa and in India. Today is the match Pune. Mumbai and Punjab. So yeah, I think I'll support Mumbai. MI. MI. कोई नहीं. चलो ठीक है. I'll end this session here only. Thank you so much for joining me. Thank you so much for sharing इतना सारा information. It means a lot. Thank you, Purva. I have a nice time with you on Instagram. I wish you a very, very happy life. Same to you. See you from now. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. So this was an amazing session with Naman Ojha. He is a cricketer and he shared a lot of details about him. If you have missed this episode, I will upload it on YouTube. Don't forget to subscribe to my channel. The link is given in my bio. And thank you so much for watching us.